Good afternoon to all of you. This is Kumaranand ji. Once again, we'll meet to take the class of physical education. So today, once again, we'll teach the subject physical education, class 11th. Yes, class 11th physical education, and the lesson is second lesson. The second lesson, part B, means part second. Means in first part means the video which was uploaded by me before some days. I taught physical fitness. What is physical fitness? What is wellness? What is health? What is positive lifestyle, and what are the components to lead positive lifestyle, means to develop wellness. But today means we meet second times for the lesson second, so it would be part 2. Today topic is components of physical fitness. As you know, fitness means capacity of a person to do any work. But for it, what is required? That is component. So which type of component? There are 5 components are required to achieve the good physical fitness. First one is strength, second endurance, third speed, fourth flexibility, and fifth coordinative ability, means agility. So we'll describe the first component of physical fitness, strength. What is strength? Strength is the ability. Strength is the ability. Just I want to explain through example. I have pen. So when I pull the pen, yes, it means a chap, means child, a baby, maybe will be unable to take this pen from the pocket. Why? Because lacking of power. But I have able. Suppose second example, just like this is book. We are able to lift, but a child, a baby of 2 months will be unable to lift the book. Means he will like, because lacking of power, उसके पास वो उतना पावर नहीं है. सेम ये पेन को खींचने के लिए हमारे पास पावर, हमने खींच लिया, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा? ऐसे, यानी वो नहीं खींच पाएगा, उसमें वो पावर नहीं है कि इसको पॉकेट से ऐसे खींच सके. इट मीन्स व्हेन, जब वो बच्चा इसको खींचता है तो क्या होता है, ये जब हम कैच कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स क्या हो रही है यहाँ, मीन्स एनीवन रेसिस्ट आवर मसल्स. रेसिस्ट मीन्स it is a force which oppose you, which force you to go opposite direction. Means वह शक्ति जो आपको असफल करने का प्रयास करती है. Just as this book is lift, जब ये उठाया जाता है बुक, उस समय भी क्या होती है कि अगर हमारे पावर ना हो तो ये बुक ऐसे गिर जाएगी. मीन्स यहाँ भी
हमारे मसल्स को क्या की जा रही है, रेसिस्ट की जा रही है, असफल की जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य की जा रही है। बट आई हैव पावर कि हम उसको असफल नहीं होने दे रहे, इसको नहीं गिरने दे रहे। वॉट एवर वर्क इज परफॉर्म, एवरीवेयर स्ट्रेंथ इज परफॉर्म। वेदर वी आर राइटिंग, हम राइटिंग कर रहे हैं, उस समय भी हमें ये पकड़ने के लिए यहाँ पावर चाहिए, और ये हम पकड़े हैं तो यहाँ पर हमारे मसल्स को अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, रेसिस्ट किया जा रहा है। दैट इज स्ट्रेंथ। इट मीन्स इट इज द एबिलिटी, यहाँ की क्षमता दिखी जा रही है। किसकी क्षमता? इस मसल्स के। तो इट इज द एबिलिटी, मीन्स स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, strength is the ability of muscles to overcome resistance, इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस हो रही है, और उधर क्षमता जो कार्य कर रही है मसल्स के ऊपर, ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, यानी यहां भी मसल्स को प्रभावित कर रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य कर रही है। हमारे में शक्ति है तो हम पकड़े हुए हैं, शक्ति नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगा तो ये पेन छूट जाएगा ऐसे। सो वी कैन राइट इन एग्जाम कि व्हाट इज स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। टू ओवरकम रेसिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रेंथ। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड सेकेंड इज डायनेमिक स्ट्रेंथ। जस्ट रिमेंबर वन डेफिनेशन ओनली, केवल आप एक याद करिए स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स सभी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। केवल यू हैव टू चेंज द लास्ट वर्ड, यू हैव टू चेंज द लास्ट वर्ड। स्टैटिक स्ट्रेंथ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ। सो सेम डेफिनेशन, स्टैटिक मीन्स स्थिर, द वर्क which is performed in a single position. A dynamic means motion, gati, the work which is performed in motion, in movement. So first it is of two types, first static strength, second dynamic strength. So same definition, strength, it is the ability of muscles to overcome resistance in a single position. Last word एक बस include करना है, in single position, that is known as static strength. Example, push the wall, push the wall, we are pushing the wall, we are pushing the wall. There is no movement, there is no movement, external movement of muscles, but we are performing work, we are doing work of pushing the wall, means in a single position. Second example, tug of war in rope, रस्साकसी करना, जब रस्सी इधर से खींच रहे हैं उधर से भी पावर से खींच रहा है, जब एक बराबर जब पावर लगती है तो ऐसे डायरेक्शन बना रहता है। But we are performing work, but there is no external movement. उधर से वो खींच रहे हैं, उधर से वो खींच रहे हैं, बराबर पावर लगा, रुक गए। Static position, स्थिर position. That is the example of static strength. Means it is the ability of muscles to overcome resistance. क्योंकि उधर से वो खींच रहा है, हमको असफल करने का प्रयास कर रहा है, अगर पावर नहीं रहेगा तो हम पीछे चल जाएंगे। बट हमारे पावर है, हम भी उसको, जो हमें हमारे मसल्स को जो रेसिस्ट कर रहा है, असफल करने का प्रयास कर रहा है, सिंगल पोजीशन में हम असफल नहीं होने दे रहे, हम भी खींचे हुए उतने पर। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस इन सिंगल पोजीशन इज नोन एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। एग्जांपल इज पुश द वॉल, tug of war in rope, and second is dynamic strength. So same definition, it is the ability of muscles to overcome resistance. और यहीं पर लास्ट वर्ड आपको इंक्लूड कर देने हैं। हमने बोला कि लास्ट वर्ड बस चेंज करना रहेगा हर एक में, तो इसमें लास्ट वर्ड क्या रखेंगे?
इन मोशन, यानी इन सिंगल पोजीशन को हटाकर हम वहां क्या जोड़ देंगे, इन मोशन। जैसे रनिंग, दैट मूवमेंट, मूव, एक्सटर्नल मूवमेंट of hands, legs, washing, painting the wall, we are doing paint, in motion, गति हो रही है, बट हम ऊपर जा रहे हैं, हमारा पावर नहीं रहेगा। कैसे? The old man is able to take the glass of water because they have no more power as required। तो हमारा पावर नहीं रहेगा, ब्रश वो ऊपर नहीं जाएगा हैंड्स, यानी गति हो रहा है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ। एंड हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ, यानी कि जो गति में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है मसल्स का, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। द फर्स्ट मैक्सिमल स्ट्रेंथ, द सेम डेफिनेशन, हमने बोला कि लास्ट वर्ड बदलना है आपको, पूरा लाइन लिख लीजिए जो पहला याद कर चुके हैं कि स्ट्रेंथ क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अब यहीं पे जोड़ दीजिए, ये डायनेमिक का है तो इसका पूरा डायनेमिक आप लिख सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन मोशन। अब यहीं पर एक ऐड करना है, विच कंसिस्ट मैक्सिमम पावर, यानी कि जब मूवमेंट के साथ गति के समय हमारे मसल्स को कोई प्रभावित करने का, असफल करने का प्रयास करे पूरी पावर के साथ, शक्ति के साथ, तो वही कहलाता है मैक्सिमल स्ट्रेंथ। एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन मोशन विच कंसिस्ट मैक्सिमम पावर। बस जस्ट लाइक आप उठा रहे हैं इस चीज को, अगर सपोज द वेट इज 20 किलोमीटर लाइक दिस, छूट गया, क्यों? पावर नहीं है। अगर हम पावर है तो इजीली उठा दी, अब पावर नहीं यहीं पर उठाए हुए, क्योंकि बहुत वजन है, हाथ से नीचे स्लिप कर रहा है, इसकी पावर इतनी अधिक है, 20 kg वेट है, हमें क्या कर रहा है, ये मसल्स को क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ ले जा रहा है, हमको लाना है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ ले जा रहा है, असफल करने का प्रयास कर रहा है गति के दौरान। यानी पावर है इसमें, जितना ज़्यादा पावर उतना ही आपको ये ऐसे असफल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। रेसिस्ट का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य करना। सो सेम मैक्सिमल स्ट्रेंथ में पूरी चीज़ लिख देंगे जो याद हो चुका है। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन मोशन विच कंसिस्ट मैक्सिमम पावर। जैसे वेट लिफ्टिंग, उठा रहे हैं 50 kg का, पावर नहीं है तो वो क्या करेगा, उतना ही तेज से हमको असफल करेगा। रेसलिंग, पावर लगा रहे हैं दोनों पहलवान, रेसलर क्या कर रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, पावर की कमी होगी तो क्या करेगा, हमको पीछे धक्का दे देगा। मैक्सिमम पावर यानी जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही आपको कोई असफल करने का उतना ही तेज से प्रयास करेगा। सेकेंड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, सेम डेफिनेशन लिखिए। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन मोशन, क्योंकि ये तो डायनेमिक का है पार्ट, इसलिए डायनेमिक का मतलब ही होता है जो मोशन में हो, तो पूरा डायनेमिक आप लिख लीजिए। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन मोशन विच कंसिस्ट, पावर जो था मैक्सिमम में उसको हटाकर क्या लिख देंगे, विच कंसिस्ट स्पीड, यानी कि जो स्पीड वाला जो वर्क हम करेंगे, अगर उस समय आपको कोई असफल करने का प्रयास करे तो वहां पर जो पॉइंट को हम आउट करेंगे, दैट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जैसे जंपिंग, सपोज वी हैव टू जंप,
बस। लेकिन हमको वहां से तेजी से आना हो तो ज्यादा दूर कूद गए, यानी जितना स्पीड से रनिंग कर आएंगे उतना ही हम ज्यादा जंप करेंगे। अब यहां से कूदिए, कितना दूर कूदेंगे ये खड़े खड़े, लेकिन दौड़ कर आइए तेज कूदेंगे। हमको जंप करना है और इसको हम तेजी से, बॉडी को तेजी से लिफ्ट करेंगे, यानी जितना तेजी, जितना स्पीड दिखाएंगे बॉडी को अपने, उतना ही जंपिंग हमारा अधिक होगा। तो ये उस समय जो हमको असफल करेगा, यानी कि हम जा रहे हैं, हमको कोई रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है, लेकिन हमारे में स्पीड है, जंप कर गए। हम लॉन्ग जंप दौड़ कर आ रहे हैं, लॉन्ग जंप हमें जंप करना है, हमको कोई जंप करते समय असफल करता है कि पहले ही गिर जाए, लेकिन हमारे में स्पीड है तो हम दूर तक कूदते हैं, ऐसे जंप करते हैं। यानी उस समय क्या हो गई, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन मोशन which consists maximum speed is known as explosive strength. Example clear? Long jump, high jump. Third, strength endurance. जैसे देर तक काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके बाद दौड़ते दौड़ते 2 किलोमीटर के बाद दौड़ते दौड़ते क्या होता है, पैर बढ़ता नहीं है आगे, ऐसे रुक जाता है, हाथ ऐसे ऐसे, यानी थक जाते हैं। थकने के समय हमें कोई क्या करता है, रोकता है। यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। ये लिखकर एक लाइन थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ इंडोरेंस है, इसलिए एक लाइन लिख दीजिएगा बेटर के लिए कि इट इज द एबिलिटी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। उसके बाद लिखिए इट इज द सेम, जो पूरी लाइन लिखते आ रहे हैं शुरू से, it is the ability of muscles to overcome resistance during fatigue condition, जो थकावट के समय हमें असफल करने का प्रयास करें, that is known as strength endurance. Example, long distance running, swimming, तैरना, that would be example of strength endurance. Now second, endurance. Endurance means suppose I am taking class, I am teaching, I get tired while speaking continuously 30 minutes, and you are also taking class, you are listening to me in the class, but after one period you get tired, you need to go out the class, then relax, then come in the class. But some students are able to sit in the class continuously 3 periods. There are some students also who are able to sit in the class continuously 4 periods. It means the students who take continuously 4 periods has better endurance capacity than the students who take continuously 2 periods. इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि उसके पास देर तक कार्य करने की क्षमता है, वो थक नहीं रहा है। एक पीरियड क्लास ले रहा है, दूसरा 2 पीरियड लगातार ले रहा है, यानी कि 2 पीरियड वाले के पास अधिक क्षमता है देर तक कार्य करने की पहले की अपेक्षा। इट मीन्स इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट, स्ट्रेंथ वाला नहीं कि रेसिस्ट द मसल्स, यहाँ मसल्स को रेसिस्ट नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, रेसिस्ट द फैटिग, यानी जो थकावट को ही हरा दे, असफल कर दे। इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट द फैटिग, जो थकावट को ही असफल कर दे, रेसिस्ट द फैटिग इज नोन एज इंडोरेंस। इन अदर वर्ड वी कैन से it is the ability to do any work continuously for longer duration.
इज नॉन एज इंडोरेंस। लंबे और लगातार कार्य करने की क्षमता को इंडोरेंस बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक इंडोरेंस, सेकेंड इज एनारोबिक इंडोरेंस। AEROBIC, एरोबिक इंडोरेंस एंड सेकेंड एनएरोबिक, यानी एरोबिक में एन लग जाएगा, ANAEROBIC, एनारोबिक इंडोरेंस। देखिए याद करने का एकदम सिंपल फॉर्मूला, एक ट्रिक। एक नाम जो है वो बड़ा है एंड सेकेंड जो नेम है वो थोड़ा छोटा है। एनारोबिक बड़ा नाम, एरोबिक छोटा नाम, या अपोजिट मैच कर देना है। एनारोबिक बड़ा नाम है उसके साथ छोटा, और एरोबिक छोटा नाम है उसके साथ बड़ा, यानी एनारोबिक को मिलते हैं बड़ा नाम तो उसके साथ छोटा मैच होगा अपोजिट, तो एरोबिक छोटा होगा। तो देखिए एक सेंटेंस बन गया कि एन एरोबिक इज ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, वन सेंटेंस। और इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सेकेंड सेंटेंस अपने आप बन गया, यानी द वर्क इज परफॉर्म्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, बड़ा के साथ छोटा, द वर्क इज परफॉर्म्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। दो सेंटेंस, एक सेंटेंस और बन जाएगा तीसरा। जब हम छोटा वर्क करेंगे, हमें 10 कदम जाना है, 10 फीट दौड़ना है, हमें एक जंपिंग लेना है, तो हमारी स्पीड कैसे होगी? तेज होगी, फुल स्पीड दे देंगे। तो तीसरा सेंटेंस अपने आप बन रहा है, द स्पीड इज सेट एट फास्टर पेस या फास्ट पेस, यानी हम स्पीड जो सेट करते हैं वो तेज गति पर करते हैं, फास्ट पेस। ठीक, एक सेंटेंस और अपने आप बन जाएगा, भाई तेज गति से कर लीजिए, कम दूरी की वर्क है। उस समय सपोज हमें वॉलीबॉल की ऐसे स्मैश मारना है, बॉल आया, स्मैश गया वो अपोनेंट टीम के पास बॉल, रिलैक्स, फिर आया अंडर हैंड, यानी एक शॉट के लिए एक शॉट, ब्रॉड जंप या कूदना है एक बार, यानी कि यहाँ पर जो हमें एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी दो प्रकार से मिलती है, एक न्यूट्रिशियंस जो खाते हैं बैलेंस डाइट, और सेकेंड एयर से, यानी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के द्वारा जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म के तहत प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, एक एनर्जी वो प्रोवाइड होता है उससे, ऑक्सीजन से। तो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो कुछ एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर रहता है जो ऑक्सीजन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग हम करते हैं, सांसों का लेना और सांसों को छोड़ना, उससे जो। तो उस समय क्या करेंगे, बॉल आया, क्या रुकेंगे? अरे रुको, सांस ले, एनर्जी बना लें? नो, यानी जो हमारे अंदर एनर्जी है, यानी कि हम जो वर्क परफॉर्म करते हैं छोटे दूरी वाला, उसमें हम अपने स्टोर्ड एनर्जी से ही काम चला लेते हैं। तो एक सेंटेंस हमने आप लिख सकते हैं, द वर्क इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी बाहरी हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। द वर्क इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स which are stored in our body. Example, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, शटल रन मीन्स ब्रॉड जंप एक्सेट्रा। और दूसरा टाइप हमने क्या बोला, एनारोबिक हो गया, एरोबिक इंडोरेंस। तो एनारोबिक लिख दिए तो दूसरा इजी है, उसी को उल्टा कर दीजिए। एरोबिक छोटा नाम है बड़ा, इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉन्ग टर्म इंडोरेंस।
उसको समझा दीजिए जो सेकेंड लाइन उसका बनाए थे, द वर्क इज परफॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, तो इसमें हो जाएगा द वर्क इज परफॉर्म फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। उसमें लिखे थे द स्पीड इज सेट एट फास्ट पेस, इसमें लिख देंगे द स्पीड इज सेट एट स्लो पेस। उसमें लिखे द वर्क इज परफॉर्म फॉर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लिखेंगे द वर्क इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमें 2 किलोमीटर दौड़ना है तो अंदर वाले सांस जितना रहेगा उससे काम चलेगा नहीं, बाहर ही हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल में हमें कंटिन्यू हमें दौड़ना पड़ता है, गोल कोर्स से स्टार्ट किए दौड़ रहे हैं, चांस मिल गया हमें गोल में लेकर चले गए, वहाँ कोई हमें स्नैच कर लिया बॉल को, देखने को भाग रहा है तो क्या छोड़ देंगे कि हमारी टीम हार जाए, फिर उसके पीछे लग जाएंगे। तो फुटबॉल, हॉकी, मैराथन, क्रॉस कंट्री रेस, स्विमिंग, these are the example of aerobic endurance. Okay, so third point and fourth we'll explain in next. It means speed, flexibility and coordinative ability. इस चीज़ को मैं next means part 3 में explain करूँगा. So thank you and just subscribe this channel for getting such type of videos on my YouTube. Fitness for fitness to improve the fitness capacity, to getting good physique, self defense, trick for various games. ये सब चीज़ों के भी जानने के लिए आप नंद बॉक्सिंग एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, NAND नंद बॉक्सिंग एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर सपोर्ट करिए। थैंक यू।